In the accounting standards, our aim is to speak a common language in which we write the financial statements of a company or any organization so that it's understandable to all. Similarly, setting standards. I mean, this is an outsider's perspective, as I always say, when I look at teacher education being a new entrant into this field. This will give uniform benchmark or standards for each teacher to measure themselves up to see where in the standard or the scale of excellence they stand. So how are we going to implement this? The academic tools for measuring this excellence, as Chaturvedi ji has shown those two documents. In fact, इसके आगे भी काम हो चुका है. NCT ने ना सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स NPST और NMM बनाए हैं, इसके बाद एक और डिटेल्ड काम किया है जिसके अंदर इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा. So the implementation program has also been developed. Now, since this has to be implemented across the country, we need the stakeholders, that is the states, to walk along with us to achieve excellence in education. And in that, we have done a bit of the work, and some bit of it is still left. The states are to appoint nodal authorities. They could be the SCRTs or the directorates of education. Then they are to appoint the nodal officers. Now, this aspect of appointment of nodal officers has been accomplished, and we have a list of all the nodal officers from all the states and union territories, from KVS and NVS. Then the next stage would be, now I'll also talk of the IT aspect of it, क्योंकि इसको implement करना बिना technology के संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम across the country इसको implement करना चाहते हैं. तो उसके IT tools को develop करने के लिए, now we have to translate the academic tools into the IT tools, for which we have taken the NIC on board, and we are formalizing an engagement and an agreement and a contract agreement with them to develop the IT software to implement this. The states would have the freedom either to adopt the tools developed by NCT for KVS, NVS, CBSE, or they could, if they so wish, they can adapt those academic tools and develop their own software to implement it in their states. And I would not make it sound as frightening as Chaturvedi ji made it. See, this is a tall order being delivered by a short person, so I needed a stool to stand upon to be visible to you guys. Indeed, a tall order to be implemented in the country. I'll just repeat on a lighter note. I would not want to make it sound as frightening as Chaturvedi ji made it, कि सब चीज़ इसमें map होगी और promotion, demotion. See, we are trying to establish standards, and the aim is to teacher education excellence. So we would want all the stakeholders to get along so that we can walk the path together. And it is going to be a win-win, for the teacher to be able to see कि वो किस stage पे हैं, proficient, then I think advanced and expert. There are 3 levels, and the tools have been designed after a lot of hard work, after a lot of deliberation by committees that were constituted for this purpose, and they've been designed in a very professional manner, just waiting now for us to translate them into form of a software so that they could be implemented. And NCT would be organizing workshops and meetings to transmit this or to take it forward with all the stakeholders. कल हम एक पैरेलल सेशन भी करेंगे जो हमारे नोडल ऑफिसर्स आए हैं स्टेट्स से और यूनियन टेरिटरीज से, उनके संग ऐसा ही एक सेशन हमने शिलोंग में किया था, और हम हर नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर इसको ये अपॉर्चुनिटी को ले करके, बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव्स आर हियर एंड वी वुड वांट टू
have a one-on-one session with them so that we are on the same wavelength, so that when we implement it, we don't have many issues. And this is the NPST. Similarly, on the NMM front, just as चतुर्वेदी जी ने अभी बताया कि हमारे अभी केवल 1000 पूल ऑफ मेंटर्स हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो हमने जो सॉफ्टवेयर है हमारा अभी बहुत लिमिटेड है, हम उसको ग्लोबली स्केल करेंगे, अब स्केल अप करेंगे. देन वी वुड want as many mentors to register with us so as to enable NCT to take it forward. So this is all on the administrative perspective of NPST and NMM, and in fact it's a learning for me along with you to be sharing this with all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your insightful words and way forward of NMM and NPST. अगर मैं अभी हमारे जो 3 पैनल मेंबर और अध्यक्ष का डिस्कशन है उसको अगर मैं छोटा सा अगर उसको कंक्लूड करती हूँ तो वो ये है कि जैसे सलूजा सर ने कहा कि मोटिवेशन हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड होता है. बहता हुआ पानी रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन जो बहती हुई धारा होती है वो नदी हो जाती है. तो इसलिए हर एक प्रोफेशन में एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए NPST शायद एग्जिस्टेंस में आया. उसी तरीके से अभिलाषा मैम ने हमारी NCT की प्रिपेयर्डनेस और वे फॉरवर्ड के ऊपर प्रकाश डाला और किस तरीके से हम तैयार हैं और आगे हमारी तैयारी वो भी कंटिन्यू रहेगी. इसके लिए आपके फीडबैक जो हम लेते रहेंगे और जो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा वे फॉरवर्ड चलेगा. उसी तरीके से कन्वीनर सर DK चतुर्वेदी सर ने जो प्रकाश डाला कि NMM और NPST में टूल्स बन चुके हैं और इसके लिए NPST के लिए हमने 25 जवाहर नवोदय विद्यालय, 25 केंद्रीय विद्यालय और 25 CBSE स्कूल्स में हमने पायलट किया NPST को. इसमें 1155 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, ये बताने के लिए टूल्स की क्या सारगर्भिता है. तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, हु इज़ अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, और वो प्रकाश डालेंगे कि क्योंकि हमने नवोदय विद्यालय में इसको पायलट किया है तो क्या उनके अनुभव रहे और आगे उसको पूरे देश में रोल आउट करते हुए किस तरीके से हेल्प की जा सकती है. थैंक यू सर. सभी को नमस्कार. मंच पर उपस्थित सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय सलूजा साहब एवं मंच पर उपस्थित अन्य पैनलिस्ट, मंच के समक्ष उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सबको मेरा बौद्धिक नमन. सर्वप्रथम मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस पुण्य भूमि पर आने के लिए, इस परिसर में घूमने के लिए, जहाँ पर स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले अनेक महानुभाव इस धरती पर पधारे. मुख्य विषय पर आने से पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं. देश के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1985 में 2 विद्यालयों के साथ रोपा गया ये पौधा आज 653 नवोदय विद्यालय पूरे देश भर में आवासीय सह शिक्षा के रूप में कक्षा 6 से 12 में गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जहां से न केवल आपने ये देखा होगा कि एक घर में 2 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे शिक्षक और प्राचार्य 560 बच्चों को आवासीय परिसर में संभालते भी हैं लोको पेरेंट के रूप में और गुणात्मक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं. मैं उन सभी शिक्षक और प्राचार्य वृंदों को भी नमन करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप CBSE की बोर्ड में पिछले लगातार 5 वर्षों से हमारा परीक्षा परिणाम उत्तम रहा है. UPSC की जो लिस्ट निकलती है सिविल सर्विसेज की, उसमें हमारा अपना अकेला ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से हर साल 25 से 30 कैंडिडेट नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र होते हैं. इस भूमिका के साथ विषय पर आते समय NAP ने गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कुछ फीचर्स बताए हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वेयर ईच एंड एवरी child is welcomed and cared, where variety of learning
experiences are offered, where safe and stimulating environment exists, where physical infrastructure and resources conducive to the learning are provided to all students. NEP 2020 is not just upgrading the school infrastructure or adding a few subjects, but it is a complete rethink of delivery of education. And for this delivery of education, we need quality of teachers. Such type of quality teachers, वो कैसे होने चाहिए? क्वालिटी का मतलब क्या है? NEP कहती है कि इस मिशन में, आई एम नॉट यूजिंग पर्पजफुली प्रोफेशन, हाउ द टीचिंग कैन बी एक व्यवसाय. टीचिंग एक मिशन है जिस मिशन में क्वालिटेटिवली कैसे लोग आए जो बच्चों को अभिप्रेरित कर सकें, जो मोटिवेट कर सकें, जो बिल्ड कर सकें उनका कॉन्फिडेंस, जो क्यूरियोसिटी को नर्चर कर सकें और जो क्लासरूम को हब ऑफ लर्निंग ऑफ क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकें. ऐसे शिक्षकों की आज आवश्यकता है. ये शिक्षक कहाँ हैं? ये शिक्षकों का दो समूह है. एक समूह तो वो है जो शिक्षक बनने के लिए आतुर है, या ये कहिए शिक्षा में के व्यवसाय में आना चाहता है. एक शिक्षक वो है जो स्कूल सिस्टम में एग्जिस्टिंग है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहले वाले ग्रुप को कैटर करते हैं, वो उनको अध्यापक बनाने की तैयारी करते हैं और बनाकर क्वालिफाई करके हमारी प्रयोगशाला में भेजते हैं, जहां स्कूल में आकर वो अध्यापक अपने आप को अध्यापकत्व के रूप में गढ़ता है. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के शिक्षक आप लोग जहां बैठे हुए हैं वो उन गुरुओं के गुरु हैं और NCTE दोनों के गुरु हैं. वो इन सर्विस टीचर्स के भी ट्रेनिंग का जिम्मा उनकी क्वालिटी टीचर बताने का काम करता है और टीचिंग एजुकेशन में भी उसका फ्रेमवर्क का भी निर्धारण करता है. और इन दोनों दिशाओं में काम करते हुए NEP 2020 ने 3 आयाम दिए NCTE को. एक तो जो सुबह प्रथम सत्र में बात हुई ITEP जो आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और दूसरा NMM NPST. मुझे खुशी है कि NMM और NPST के लिए नवोदय विद्यालय वर आल्सो द पार्ट ऑफ पायलट स्टडी. जब इनकी पायलट स्टडी के लिए NCT से आया हमारे पास, तो मैंने उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर से ऑनलाइन चर्चा की कि इस तरीके से आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस पायलट के पार्ट बन रहे हैं. तो एक अध्यापक ने मुझसे पूछा, सर इससे होगा क्या? तो मैं जो थ्योरी थी वो बता रहा था. जो उसकी थ्योरी थी वो बता रहा था कि इससे ऐसे प्रोग्रेशन होगा कम समय में. अभी आपको 11 वर्ष लगते हैं ACP के लिए, फिर कम समय में आप होंगे, अगर आपकी क्वालिटी है तो आप जल्दी प्रमोट होंगे. और एक जो अभी सभी अध्यापकों को एक ही नजरिए से देखा जाता है, तब अलग अलग तरीके से देखा जाएगा कि कौन प्रोफिशिएंट है, कौन स्किल्ड है, कौन एक्सपर्ट है. देन ही आस्क्ड कि सर ऐसा संभव है हमारे देश में? तो उस समय मैंने कहता बड़े कॉन्फिडेंस से दिया कि ऐसा संभव होगा, लेकिन अंदर से डर था कि ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. लेकिन आज NCT ने जो गुणतर कार्य किया है, इन NMM और NPST के लिए जो मापदंड और मानदंड तैयार किए हैं, और उसका विशेष रूप से जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको आप देखेंगे कल जब एक सत्र होगा इस विषय पर. यह निश्चित रूप से शिक्षकों की गुणात्मकता लाने का एक अनुभव प्रयोग ही नहीं वरन भागीरथ प्रयास है, जिसके कारण से हमारे एजुकेशन सिस्टम जो देश की है, हम अभी बात कर रहे हैं 2047 में विकसित भारत की, ये एक स्टेप होगा निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में हमारी गुणात्मक शिक्षा के रूप में, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे शिक्षक भी क्वालिटी टीचर्स हों. अभी तक जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, NMM में देखिए NEP में केवल 3 लाइन है. जब मैंने पहली बार NEP पढ़ा, जब ये रिलीज हुआ, तो मैं अपने एक प्रोफेशनल गुरु हैं उनके पास लेके गया कि साहब ये बताइए 62 पेज में कैसी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? 62 पेजेस आर इन NEP. Then he replied, he was a very experienced person. बोले ज्ञानेंद्र, इसके हर पैराग्राफ से एक बुक बनेगी. हर पैराग्राफ एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है. तो मैं सोच रहा था ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब आके देखता हूं कि हर पैराग्राफ पर एक पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है.
चाहे आप NMM की बात करें तो 3 लाइन से एक ब्लू बुक तैयार हुई, NPST की बात करें तो उससे देखिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ। एक जगह आया था बैकलैग्स डेज होंगे, वो केवल 1.5 लाइन है, उस पर NCERT ने कैसे बैकलैग्स डेज को स्कूल में इंप्लीमेंट करेंगे, पूरा एक उस पर बुकलेट तैयार की है। सो निश्चित रूप से एक दूरगामी प्रयास है भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, और हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बनेंगे अपने आने वाले समय में। NPST और NMM अभी तक टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, एक मैंडेट होता था अभी कि साहब ट्रेनिंग करानी है। हमारे भी नवोदय विद्यालय के भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उनके माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो कहीं लिंक्ड नहीं है। लेकिन NPST के माध्यम से उसमें जो 3 कोर स्टैंडर्ड हैं जो चतुर्वेदी जी ने बात की, कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है जिसमें अध्यापक अपनी व्यावसायिक क्षमता को उन्नत करने के लिए खुद अपने आप से प्रयास करेगा, बजाय किसी और के प्रेशर के, किसी रेगुलेशन के, और अपने आप को उन्नत करने के लिए, अपने आप को कुशल करने के लिए वो खुद प्रेरित होकर काम करेगा। ऐसी व्यवस्था NPST में है। NMM में भी हमारे पास बहुत बड़ा पूल है रिटायर्ड पर्सन्स का, एक्सपर्ट्स पर्सन का, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से वो उनका एक्सपीरियंस का हम दोहन कर सकें, उनको हम उपयोग कर सकें। NMM एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहां एक्सपर्ट प्रोफेशनल अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, जो मेंटीज हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, और 21 डोमेन हैं, शायद 21 डोमेन्स मेजरली, जिसके अंतर्गत वो अपने आप को गाइडेंस और मेंटरिंग की बात उसमें होगी। इन दोनों प्रयास से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल सिस्टम हैं, चाहे KVS है, चाहे NVS है, CBSE के स्कूल्स हैं, इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और हम एक एग्जाम्पलरी पार्ट बनेंगे इसका कि किस तरीके से NPST और NMM हमारी संस्थाओं में ये पालन हो सके, और इसके जो मापदंड NEP ने जो सोचा है उसका मूर्त रूप हमारे विद्यालयों में देखने को मिलेगा, और हम पूरा संवेद प्रयास करेंगे NCTE के साथ मिलकर कि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन का, इसके क्रियान्वयन में मेरे लगभग 17,000 शिक्षक हैं अक्रॉस द कंट्री, 2,88,000 बच्चे हैं, और इसका इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन का नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और CBSE के स्कूलों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं NCTE को, उनकी टीम को। उन्होंने पूरे देश भर से जो प्रखर शिक्षाविद इस चुनौतीपूर्ण कार्य करने को तैयार किए, उनको इकट्ठा किया, और उनसे ये एक डॉक्यूमेंट तैयार कराया गया है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं गुजरात विद्यापीठ का, जिनके समन्वय से ये कार्यशाला संपादित हो रही है। आप सबको साधुवाद देते हुए एक बार NCTE और गुजरात विद्यापीठ के लिए ताली नाद, मैंने नया शब्द सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंस देता है, और एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन को मौका देता है, और एक्सप्लोरेशन किसी भी कार्य की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। तो जैसे कि सर ने बताया, नवोदय विद्यालय में एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस लिया गया, और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया गया। अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर रोबिन छेत्री जी का, जो डायरेक्टर SCERT सिक्किम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा कार्यक्रम स्कूलों तक पहुँचना चाहिए, तो कैसे दिशा और दशा निर्धारित की जा सकती है उसकी ऊपर लाइट डालेंगे आदरणीय रोबिन छेत्री जी। Namaskar and good afternoon to all. I mean, many things have already been said, and then, like speaking after Professor Saluja and the team of NCT, and of course, Gajendra ji from NBS, there are not many things that has been left, but then I will just try to find out, some relevant things which possibly could have been said, and now I will try to do that. With my very humble pranam, I take this opportunity to represent the SCERTs. SCERT is such an organization that it is at the interface. ये ऐसे जगह पे स्थित है कि we can, being in SCERT, we can see what is happening in the national level, what are being intended, what are the intention of
like the national intention kya hai, national aspiration kya hai. Then we can also see the downstream that how things are being rolled out in the states, like are going right up to the schools. So being in such a position, sometimes feel very happy that such an interesting phase we are going through. I mean, the kind of phase we are going through in the country after the launching of the new education policy, so many things are happening. We are going through, especially those who are working in the education sector, we are so excited, like we are, like the new energy has come up now, very aspirational, forward-looking, contemporary, like game-changing kind of new education policy has come. So we are going such a phase, and we are very excited. But then again, when you see that those national intentions not percolating down to the actual practitioners in the school, that channel through which that information or that intention has to go, that sometimes we feel like it needs a lot of improvement. So, like, I mean, in the national level, the policy has come to support that very important documents like National Curriculum Framework for Foundational Stage, National Curriculum Framework for School Education have come. I mean, Gajendra was saying it's only a 60-page policy, but it has created so many things. But if you look at, on the contrary, if you look at the National Curriculum Framework, then it is almost tenfold than what we had in the earlier days. पहले वाला National Curriculum Framework 2005 को आप देखें तो 50-60 पेज का ही है, और इस बार आया है 600 पेज का. On top of it, in addition to this, foundational stage का 300 पेज का है. Now we are, like translating into all the scheduled languages. So we can see 1,000 pages of document getting translated. So, but then these documents are of interest. Like if we, I mean, when 600-page document of NCF AC was launched, then people started asking, "Kaun padega hai? 600 page ka document hai." But then when you start reading it, then you will start actually don't feel like leaving it. You go on reading and reading. This beautiful document. It has got very new features. So now all these things are saying we are seeing. Then we have got another very interesting document which NCERT has created, is about changing the whole paradigm of assessment. Like from, we have been talking about changing our assessment from content-based to competency-based. Then now we are talking about 360-degree holistic progress card. And then, like all these very exciting things are happening. But then the challenge goes to the teachers now. Because as I said, many already has been said, like both the national education policy and also the curriculum framework puts the teachers, the actual practitioners at the center of its implementation. The NCF actually goes to say that teachers are at the heart of implementation, because even though it does not say we all understand, because as an officials, whatever we do in offices, whatever as different institutions, whatever we do in any of our institutions, but ultimately it is that 40 to 45 minutes which the teacher spends in the classroom depends upon that how nicely we have been able to translate our national intentions actually is getting translated, how we are kind of like grooming our generation. So it depends upon that. So even without saying, all of us know that teachers are at the heart of this. So in that sense, teachers do need help. Teachers need to be supported by the whole ecosystem. And then the whole ecosystem that we have been created, that should actually be helping, supporting, like to the teachers who actually translates our national intentions in the real, in the classrooms, which actually does mean, I mean, just to whatever, I mean, whatever intentions we have, that gets translated in the classroom. So in that sense, like the both curriculum framework and the NEP talks about lot about the teachers. It's starting from right from the recruitment, posting, their job role, to even the career progression. Like for example, recruitment. I mean, very bullet points ki, like we need to attract, the document says that we need to attract
best talents into this profession of teaching. Mere attraction is not sufficient. We'll have to retain them in the system, right? So attracting and then retaining and facilitating them to, like work in the utmost potential which they come to the system. Yesterday only we are talking about in another meeting of Niti Aayog that teachers do come with lot of enthusiasm in the system. But then does the system support it? We really need to do some action research to see whether that enthusiasm with our real talents have entered the education system. Is that enthusiasm still continues after 5 years or 10 years? So we have to have that system. So in that process, the document which we are talking about, National Professional Standard of Teachers, are there. There has to be a professional standard और एक व्यावसायिक मानक होना इसलिए जरूरी है, यही बोला गया है. In both the documents we are talking about कि इनका career, in the policy also, when we talk about the career progression, then we talk in that context we talk about a uniform standards, and then having attractive career path for the teachers, relaxing them for other non-academic works. All these things are already there. So just to facilitate that, just to take it forward, this document NPST has come, National Professional Standard. So as an SCRT director, as I said, also being part of the developing team of NPST, I very critically, we tried to critically analyze it. Whether is the document in sync with the National Curriculum Framework or not. So we just need to understand the basic of National Curriculum Framework, and that National Curriculum Framework, very interestingly, it's not for no reason that it has got a 600 pages, it defines the aim of school education, then also tells us how to achieve that aim of school education. That's why it has got 600 pages. So if you just look at it, the definition of the aim of school education, then there are 5 bullet points. The National Curriculum Framework tells us that first, a student after passing through the class 12 years or 15 years of school need to have rational thought and independent decision making. That's the first thing he should be able to have. Second is he should be able to take care of his own physical and well-being. And the third, fourth, and the fifth is about the participation, his participation in national building, participating in democratic process, participating in cultural and community process, and participating in economic process. So to build that capacity, there are 3 pillars which has been said, and that is the real challenge for a teacher. And these 3 challenges are, the students need to develop knowledge, because without knowledge, no rational thinking, no decision making. Knowledge is there. Gyan hona zaruri hai. Then we have the competency or the capacity that needs to be built. And the third is about the values and the disposition. This last is so important, because knowledge can be gained, even capacity can be built, but then if you don't have positive attitude to work, then having even capacity does not make any sense if that person has no attitude to work. So this is how the path of a teacher, this is how the job role of a teacher has been recommended in the in the National Curriculum Framework. So it's very challenging. That's why I said it's very challenging. We seriously need to have support system for the thing. And then again, one step forward, which we did in NCT was that the pedagogical aspects that has been recommended in the new education policy or the new curriculum framework, have they been covered in the NPST documents? And very interestingly, we found very interesting result is that whatever line of pedagogy, whatever line of capacities that has been envisaged to, not only in the policy, but also in the curriculum framework, what kind of capacities the teacher need to have, all these things are covered in the document which we have started calling as National Professional Standard of Teachers. So in that sense,
implementing NPST, National Professional Standard of Teachers, it depends upon how the state will take it. Because things have been said ki like this will be a very good standard, uniform document to assess a teacher, be it for promotion, be it for posting, or be it for migrating into other administrative posts for promotion in promotion. So this NPST documentation would be the most suitable. And then looking at it from the point of view of NCF-SE or National Curriculum Framework also, we see if the teachers really, we expect the teacher, if we expect the teachers to really fulfill or achieve the aim of school education, aim of school education, then definitely the kind of capacities that teacher need to have is completely covered in this document NPST. Now it has to be adopted, or how a state can adopt it for teachers assessment or teachers promotion scheme. I know, being represented from the state, that all states will have its own plan of career progression of the teachers. Like for example, in Sikkim, there are many career progression for a teacher. A teacher can go to administration through head of the school, becoming head of the school and getting absorbed into, in the directorate as director, in the administrative side. But even if they don't go, if they opt to remain in the school, then every 10 years or every 8 years, they get advancement grade. But then now only advancement grade is given, but their designations are not changed. But in this NPSTC, we also have started categorizing the 3 different kinds of teachers. I mean, if they got written in the system. So in that sense, this document has become very relevant, depends upon the, a very careful study by the state officials, including SCERT, and then plan it to roll out in the states in their own convenience, meaning like the way they will be able to do this. So, in that sense, we need a lot of discussion, deliberation on this. So we hope to have after this session, very interesting deliberations, and then NCT also intends to take away the suggestions from the different stakeholders from the states. So we wish to have. So as an SCERT director who is in the helm of implementation of this policy, we find it is a very helpful, relevant document which is in real consonance with National Curriculum Framework and also the new education policy. So we will hope to have a lot of deliberation on this for taking it forward. So thanks to NCT and Gujarat Vidyapit for giving me this opportunity to be here and share my thoughts. So with these words, looking forward for a very healthy discussion, I'll stop here, and thanks for patiently hearing to me. Thank you, sir. Thank you, sir. अगर मैं सर के अभी बात को अगर क्रिस्प करती हूँ तो सर का ये कहना है कि NMM NPST 2 अलग अलग आँखें हैं और जिनका एक मोटो है कि कभी हम दिए की बाती, कभी हम बाती की लो बन जाएं। तो मेंटर और मेंटी का सेशन एंड NPST दोनों सेशन का यही मतलब है कि हम दोनों का अल्टीमेटली एम यही है कि किसी ना किसी तरीके से टीचर और टॉट की दुनिया में हम अलग तरीके से एक रोशनी को बिखरा पाएँ। अभी इसी प्लेटफॉर्म में ही मेंटर और मेंटी के रिलेशन में हमारे पास स्टेज पर ही बैठे हुए हमारे सबसे सारगर्भित जो मेंटर सलूजा सर हैं, जो कि NMM प्लेटफॉर्म के हमारे मार्गदर्शक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हैं। तो यहाँ से हम समझ में आ सकता है कि मेंटर और मेंटी का रोल किस तरीके से हो सकता है, और जो मेंटी है वो कभी मेंटर भी हो सकता है और मेंटर है वो मेंटी भी हो सकता है। जैसे माँ और बच्चे के लिए अगर बच्चा अभी टेक्निकली साउंड हो चुका है और मदर नहीं है तो उस केस में वो बच्चा मदर के लिए एक मेंटर का रोल भी पूरा कर सकता है। तो इसी श्रृंखला में जो हमारे प्लेनरी सेशन का डिस्कशन तो एंड होता है, लेकिन अब ये सभागार, ये फोरम अब ओपन क्वेश्चंस के लिए, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसके लिए ओपन है। तो मैं भी NMM NPST से क्योंकि जुड़ी हुई हूँ और मैं भी उसकी इंचार्ज हूँ, तो इसी लालच में मैं आपके साथ एक फिर से जो भी चतुर्वेदी सर ने आपके साथ शेयर किया था कि NMM के लिए हमारा 3rd पब्लिक नोटिस ग्राउंड पे है। तो आपसे मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप मेंटर की फॉर्म में प्रोफेसर्स के लिए स्पेशली उसको ओपन किया गया है, तो आपसे कृपा करके आपसे निवेदन है कि आप
हमारे साथ जुड़िए। और इसी प्लेटफॉर्म में सभागार में भी हमारे बहुत वंडरफुल मेंटर्स और मेंटी दोनों ही हैं। तो अब मैं इस प्लेटफॉर्म को ओपन करती हूँ कि डिस्कशन के लिए आपके बहुत कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो लेकिन हमें दिशा और दशा दिखाएं, उसके लिए यह प्लेटफॉर्म अब ओपन है। थैंक यू। और इसको लीड करेंगे हमारे SCERT से डायरेक्टर डॉक्टर रैबिन छेत्री जी। धन्यवाद once again. So now as the session has kind of open, अभी सभी के लिए ओपन है, तो कोई मन में संशय हो व कुछ प्रश्न हो व any clarification, so anybody now please, the house is open for questions and comments, even comments for that matter. Anybody? For both the documents, one is National Professional Standard of Teachers and also the NMM mission. It could be, I mean, ये implementation के हिसाब से भी कुछ मन में शंका हो व प्रश्न हो, ये पूछ सकते हैं आप। व प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को किस तरह टीचर्स को करियर प्रोग्रेशन में लगाया जाए, many officials are sitting here related to education department. So any questions? Yes. Yes, Rakesh sir, Rakesh ji. थैंक यू सर। एक्चुअली जो टेक्निकल पार्ट है वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हावी हो जाएगा। मतलब मैं वैसे मेंटर के तौर पे उसमें एनरोल भी हो चुका हूँ, और उस दिन हमारा जो पूरा उस दिन हुआ था, तो बहुत सारे मेंटर्स हो जाएंगे। फिर जो कुछ जैसे हम रिटायर्ड जो लोग हैं तो उनको भी जोड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा डर है, मतलब पता नहीं कि कौन सी तरह की टेक्नोलॉजी होगी। अदरवाइज they are very good at their pedagogies and the content and the subjects, लेकिन क्या इतनी कॉम्प्लेक्स अगर जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी, जैसे आपने कहा कि NIC के साथ भी किया हुआ है, तो उसके बारे में हम कैसे? तो आप राकेश भाई, आप बता रहे हो कि people are ready to be mentors, but उसका I mean टेक्निकल जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, ये पक्ष बोल रहे हैं आप? इज दैट करेक्ट? वो फॉर्म तो शायद एक गूगल फॉर्म को हम आदी हो चुके हैं, तो वो तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में हमने एक ट्रायल रन किया था वो नए पोर्टल का। ओके, पोर्टल का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उस दिन बहुत सारे लोग, जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर हम जैसे बोल रहे हैं कि जो लोग अभी रिटायर भी हो चुके हैं वो भी उससे जुड़ेंगे, तो फिर क्या वो इतना अच्छे से रन कर पाएंगे, या फिर उसमें हम कुछ और चीजें सोच रहे हैं? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा राकेश जी, बाय द वे राकेश भाई एंड यहाँ महेंद्र भाई बैठे हुए हैं। आई मीन दे वेर लाइक एसोसिएटेड विथ डेवलपिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ NCERT। सो NCERT का जो प्रिपरेटरी फेज का पुस्तकें बन रही है टेक्स्ट बुक, उनमें ये दोनों गुजरात से ऑथर्स है। सो वेरी गुड टू सी यू महेंद्र जी एंड राकेश भाई हियर। सो सम मोर क्वेश्चंस देन आवर एक्सपर्ट्स कैन रिलीव। यस सर, वहाँ पे Hello. Sir, just want to know, when we are talking about national professional standard for teachers, how is the linkage going to happen with reference to the continuous professional development of the teacher? Exactly. Oh, great. CPD. So it's linkage with the CPD. You, sir, अगर और ले ले वहाँ, एक तो ये टेक्निकल सेशन, टेक्निकल के बारे में छत्रपति साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे वहीं से? और ले ले। ओके, तो yes, we can have more questions so that like. हरिओम, नमस्कार। मैं डॉक्टर दाताराम पाठक हूँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से। मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो यह है कि जब इसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें जितने विषय हैं, किस प्रकार के विषय हैं, तो जितने भी मेंटर्स होंगे अलग अलग विषय वाले, yes. तो क्या उन अलग अलग विषय वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक धारा एक रूपता रहे, इसके लिए कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था है? नंबर एक। नंबर दो, जो नवोदय विद्यालय से संबंधित आचार्य मंच पर बैठे हैं उनसे मेरा एक आग्रह है, जिज्ञासा है कि नवोदय विद्यालय में संस्कृत, जिसको हम काफी जोर शोर से अभी NEP 2020 में भी हम उसको देख रहे हैं कि आगे बढ़ाना है, और संस्कृत आईटेट की बात भी कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय में इतने प्रयत्नों के बावजूद
संस्कृत क्यों नहीं आ पा रही? हमारे आईटीएफ के बच्चे अगर संस्कृत से आईटीएफ करते हैं, चाहे अन्य तरह से आईटीएफ करते हैं, तो क्यों ना नवोदय विद्यालय के छात्रों को संस्कृत पढ़ाएं? धन्यवाद। Okay. Okay. So we have 4 questions now. I mean, So one more. अच्छा ये लास्ट वाला because it's a direct मैं question. Yeah. आपने नवोदय स्पेसिफिकली बात कही है। नवोदय में त्रिभाषा सूत्र ट्रू स्पिरिट में लागू है। 3 भाषाएं मैंडेटरी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, और तीसरी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट की एक भाषा हिंदी स्पीकिंग स्टेट में थर्ड लैंग्वेज के रूप में। कक्षा 6 ऑनवर्ड 6, 7, 8, 9 3 भाषाएं हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। जैसे अगर झांसी यूपी का स्कूल है तो वहाँ केरल की मलयालम क्लास 6 से ही पढ़ा जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए 2 शिक्षक हैं। ये तो ही त्रिभाषा भाषा के संदर्भ में। इसके अलग भी हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि स्पेशली संस्कृत के लिए भी अगर मिनिमम 15 बच्चे किसी स्कूल में इस भाषा को पढ़ने के लिए तैयार होंगे तो उसकी शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा हमने ऑलरेडी रेगुलेशन पास करके स्कूलों को भेजा जा चुका है। धन्यवाद। Okay. I have one question. My name is Dr. Jatin Soni, former Vice Chancellor of Swarnim Gujarat Sports University. मेंटर मेंटी सिस्टम बहुत अच्छा कंसीव हुआ है, मैं अभी भी एनरोल भी हुआ हूँ। मुझे एक क्वेश्चन है, क्या ये सिंपली कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आउटकम कैसे निकलेगा? हम फीडबैक मांगेंगे, तो फीडबैक जो हमें मिलेंगे इससे क्या मेंटर मेंटी सिस्टम जिस लिए एस्टैब्लिश की है उसका स्पेसिफिक आउटकम हमें क्या चाहिए, उसका असेसमेंट रूब्रिक्स हमने कुछ बनाया क्या? ऐसा कुछ एक्शन प्लान है क्या? क्योंकि इतना सारा एफर्ट करने के बाद मेंटर मेंटी को जो सजेशन दे रहा है उसमें कुछ सुधार आ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा कोई सिस्टम आउटपुट हमें क्या मिलेगा? Assessment, ऐसा कोई सिस्टम basically. बना है क्या? Yes. चतुर्वेदी जी आप ही को बोलना। सर का क्वेश्चन ले ले, सर का कमेंट ले ले पहले। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो at the outset, I must congratulate NCT for coming out with all the 3 documents. It's a wonderful work. मेरे 2 छोटे कमेंट जैसा है। एक तो ये नेशनल स्टैंडर्ड में अगर मैंने सही सुना है तो इसका असेसमेंट होगा, दोनों प्रकार के होगा, एक सेल्फ और एक एक्सपर्ट के द्वारा। तो एक्सपर्ट के द्वारा सेल्फ जो असेसमेंट होगा उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप की है कि who the expert will be, आप ही ले। Yes, yes. दूसरा मिशन 21 areas have been identified, but मुझे लगता है many more such areas will be needed, especially in the light of new textbooks now. Yes. क्योंकि टीचर्स जो न्यू टेक्स्ट पे कंटेंट आएगा शायद उस कंटेंट के लिए भी नए एरियाज ऐड करने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है। तो क्या अभी कोई एचसीटी का ऐसा प्लान है कि इसकी जगह पे थोड़ा और ज़्यादा भी ऐड करें ऐसा? थैंक यू। नमस्कार सर। ये दे दें, होते जाएगा तो थोड़ा सा we will take the question, but I think 5 or 6 very relevant questions we received, and that we are happy. Number 1 is technology enabled solution is the ultimate finding of NCT. Today we are doing this exercise in a very small scale, a local cloud and that. But we have already devised one digital schema in which there would be state folders. We are having one NCTQ, National Center for Teacher Quality, and tomorrow this will be the database of the teachers across the country. So that is a big platform, and through that we will be going to address all solutions on the NPST and NNAB, right from registration to review and also to having different kind of the inputs, database, annual, etc. And then after that, the policy itself recommends that there should be review after empirical analysis after every 5 or 10 years. So that already been there. But that digital structure we have already that, and that digital expansion will tomorrow address all the issues. This is one thing. So I think the House is agreed that today in the country like India, when election can be conducted through the digital device with the
something 100 crore more than the voters. So this 1 crore teacher mapping for either NPST and NNM for the technology Sanusal is not a big challenge. This is our planning, and our team is already working on that with the help of the NIXIA and other big organizations which are supporting the government of India in other aspect. Second thing, that how NPST, NNM is integrated with NPST. It's quite clear in the document. When you'll go through the document, you will find that those who are declared in the career progression as the expert, they will be treated as mentor. So this is the stateway integration. This is the stateway integration, that a mentor, a teacher, if he goes at the top career and he will be notified as he is expert, then he will be always either in the school leadership role, either he will be a direct mentor, or so on and so forth. All the possibilities there if he is coming across to that level. Because you know that in level 1, level 2, level 3, when we are talking like that, at the proficient level, a teacher is to give the demonstration about what is the textbook or what is the lesson. But in the proficient level, in the advanced level, he is to integrate and apply the knowledge. And then at the last level, he is to construct the knowledge. He himself is to exhibit as a knowledge. So that is all the level. So this is the way through which these things are going to be integrated, interrelated. Similarly, I have already told you this NPST is going to be integrated with the ACR of the teachers, so that the annual confidential report, some weightage of the NPST will be direct there in the annual confidential report of the teacher, and it will be assessed everywhere. So this is one way integration. What our director CRT Robbins are just now mentioning, that you know NCFSC, some of you or all of you might have gone through the NCFSC. Ultimate aim of NCFSC is what? Competency acquiring, or how to acquire the competency. And this NPST is totally what is the competency is defined. Because NPST document in a single sentence definition that what is expected from a teacher is NPST. That is the simple thing. And the ultimate aim of the NCFSC school education, that how the competency can be acquired. And this is one of the key. And then after that, assessment matrix, what our sir, Patel sir mentioned. Sir, we have computer solution, we have a assessment, and the question which is there in your mind, I have some idea about that, that your apprehension is, suppose 100 marks is there, or it is in the percentile way or the percentage way, 30%, 30% and 40%. 30% marks automatically through the computer will be awarded when a teacher will give his self-assessment. Tools would be there and teacher would fill up automatically, and that there is no limit of the time. Morning, evening, anytime, whenever he is free. So 30% weightage would be awarded to him if he is going have to all those assignments given to him. Then after that, that automatically go to the assessor, means to the principal. And then another 30% weightage will be there in the hand of the principal. But do you know, some of you may say that principal may be the bias. So in that condition, 40% weightage is given to the evidence building. And cumulative results should be 75%. So if 30% partial thing is there, even then 30% and 40% goes to the 70%. So if principal somehow very partial and very annoyed with the teacher performance, that would not affect in any way the assessment, and that matrix is there. And one thing is there, the tools which are designed, those tools, those are a kind of the question, but those are not the question which you can get in the market like the ready-made reply. These are all practice-oriented question, and that assessment can't be the partial. Why? Suppose I, a teacher, is claiming in my assessment that I am 100% good in relation with all my colleague, with all community, with all my friend, and I put this that I am maintaining all relationship. But my principal always observes that I am quarreling every day. So my principal will not approve that. So whatever I am replying as an assessment, that would be actually look in the practice by the principal or assessor. So you know, these are all practice oriented. ऐसा नहीं कि भारत की राजधानी कहाँ है, हमने दिल्ली लिख दिया तो नहीं होगा. All the questions are situation based.
and these questions are being prepared by the RIs after having 3-4 days of the workshop, and we have a question bank of that type. So this assessment have a proper matrix, and that is already a software solution. So that apprehension has already been discussed and we have addressed that. And then domain expansion. So the reply to that, the more we will be expanding our mentor, the more mentees, the more domain will be expanded. Today we are having the 20 or something limit. That's not the limit. We are going across the world, and every possible domain we are trying to accommodate inside our that. So this is what. Thank you very much. धन्यवाद। एक प्रश्न आपका रह गया है, उसके बाद मैं आपसे अलग बात कर लूं, क्योंकि यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, उनके भी लोग आ गए हैं, तो मैं इसके बाद आपको ही बुलाकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और इस चर्चा परिचर्चा में भाग लेने वाले जिन्होंने अपने विचार रखे, और आप सब ने जो प्रश्न किए, एक प्रश्न जो करना चाहते थे उनसे अभी बातचीत नहीं हुई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं जब इसे प्रारंभ कर रहा था तो मेरे मन में एक बिंदु आया था। बिंदु यह आया था कि NPST क्या है, उसके लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहता था। आज सुबह आपने महामहिम राज्यपाल जी से जो कुछ सुना वह NPST का सार है। फिर मैंने सोचा देखता हूं कोई और कहता है कि नहीं, दिनेश जी ने कह दिया था, तो इसलिए अच्छा लगा कि उससे उसकी एक हमारे पास सामने रूपरेखा आई। इस शिक्षा नीति ने जब शिक्षकों का श्रेणीकरण करने लगे, एडवांस और प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव, तो हमारे मन में एक बात आई कि हम हिंदी में और संस्कृत में शब्द देंगे। इसलिए प्रवीण, उन्नत और कुशल, ये नाम ऐसे नहीं रखे कि कुछ सोच कर रखा गया है। जब कोई एक साक्षात प्रशिक्षण लेकर आता है, अपना कार्य करता है, वो प्रवीणता है। लेकिन उसके बाद वो कुछ अनुभव लेकर ऊपर उठता है, वो उन्नत है, ऊपर जाना। अगला बिंदु मैं तब स्पष्ट करूंगा अगर वो आपसे प्रश्न करूंगा, और जो ठीक उत्तर देगा, इस समय मेरे पास पेन है, पेन उसी को दे दूंगा। कुशल शब्द क्यों रखा गया होगा, क्या अर्थ हो सकता है कुशल का? उससे कुशल शब्द निकल के आया, और आज भी कोई उस तरह से काम कर देता है तो उसे हम कुशल कहते हैं। क्या बात है, आपने तो पहली बात पर ही मुझे आउट कर दी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था, बहुत सोच समझ कर लिखा गया था। कुशल शब्द में कुश और ल है। जैसा बताया, कुश एक घास होती है जिसकी विशेषता है वो कांटों से घिरी होती है। जो भी उसे तोड़ेगा उंगलियों से रक्त बहेगा। लेकिन अगर कोई घास तोड़कर भी ले आए, रक्त भी ना लाए, कितना प्रवीण है यह, कितना ऊंचा उठ गया है, इसलिए कुशल है। यानी बच्चे को समझा भी दे, बच्चे के मन को ठेस भी ना लगे, ऐसा जो अध्यापक बनता है वह कुशल कहलाता है। एक बात कही NPST के बारे में कि हमने अचानक नहीं दिया, इसका प्रयोग किया। हमारे साथ हमारे सभागार में ही जिनका मैं पर्यायवाची हूं, इंदू जी बैठी हैं, उन्हीं का विश्वविद्यालय है, अजीम जी, प्रेम जी, और उन्हीं के अध्यापिका के द्वारा इसका पायलट स्टडी की गई। मैं ठीक कह रहा हूं? और ये प्रश्न बताया कि कितने नवोदय विद्यालय के, कितने केंद्रीय विद्यालयों के थे। ये अचानक नहीं आया है, लेकिन यह भी सोचा गया था आगे भी परिवर्तन आएंगे। आपके आज जो प्रश्न थे वो सारे मैंने लिखे हैं ताकि देखा जाए कि उसमें किस प्रकार से लिया जा सकता। उसमें एक बिंदु भी मैं जोड़ना चाहूँगा। मेंटर के लिए एक्सपीरियंस का प्रश्न उठाया है। दिस पॉलिसी इज अगेन एंड अगेन सेइंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अभी एक SK भाटिया जी के द्वारा एक पूरी पुस्तक भी आई है इसी पॉलिसी को लेकर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
आप तो जानते हैं कि जॉन ड्यूई का जो शिक्षा का सिद्धांत है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एजुकेशन, लेकिन ये तो जॉन ड्यूई ने कहा है, प्राचीन भारत तो बहुत आगे निकल गया था। वो तो कहता है आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया, पादम सब ब्रह्मचारी भी, पादम काल क्रमेण, अर्थात आचार्य से तो वो 25% पाता है और वह शिष्य 25% अपने अनुभवों स्वमेधया, अपनी बुद्धि से। और ध्यान रखना, बुद्धि और मेधा पर्यायवाची होने के बाद भी पर्याय नहीं है। अमर कोश में 14 शब्द दिए गए हैं बुद्धि के, जो ग्रहण करके धारण भी कर ले वो मेधा होती है। इंटेलिजेंस बुद्धि है, लेकिन उसके बाद उसे ग्रहण करके स्थित करके वो मेधा है। इस प्रकार से शेमुशी ना जाने कितने सारे वहां शब्द है। पादम शिष्य स्वमेधया, 25% वो अपनी मेधा से पाता है। पादम सब ब्रह्मचारी भी, चौथा हिस्सा वो अपने साथियों से, जिसे आज पीयर रिव्यूइंग या फिर पीयर ग्रुपिंग में कहा जाता है, सब ब्रह्मचारी भी। और पादम काल क्रमेण, और 25% तो वह समय के साथ साथ पाता रहता है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, कुछ लोग सिद्धांत जानते हैं, कुछ लोग प्रयोग जानते हैं, वे दोनों अपूर्ण हैं। वही धुरी पर रहता है जो प्रयोग भी जानता है और जो सिद्धांत भी जानता है। और प्राचीन भारत में तो 5 शब्द आ गए थे, अधीति, बोधः, अभ्यासः, प्रयोगः, प्रसारः। लोग कहते हैं चतुर्मुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, कितने सुंदर रूप से नैषधीय चरित्र में दिया है। पहले अधीति, नो द थिंग्स, जानो इसे। बोध, अब इसे समझो। फिर अभ्यास, प्रयोग, इसका लिए अभ्यास करो। फिर प्रयोग, अब इसे आप अपने प्रयोग में लाइए, लेकिन अब इसका प्रसार भी करो, लोगों में फैलाओ, तो वह प्रसार है। यह अनुभव है, यह हमारी प्राचीन परंपरा। मैं कहा करता हूं, यह प्राचीन परंपरा काल की दृष्टि से हो सकती है, प्रभाव की दृष्टि से तो यह भविष्य की ही है। और जो एक सुंदर रूप वहां आया, बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस, प्राचीन भारत कहता है 4 इसके कोने हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में आता है, आचार्यो पूर्व रूपम। आचार्य कहा, यह मेंटर वही आचार्य की स्थिति है जो अपने व्यवहार में भी लाए। आचार्यो पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि ही। शिक्षा नीति ने कहा कि हमें तो अनुसंधान चाहिए, रिसर्च चाहिए। 18वां भारत कहता है आपको रिसर्च चाहिए तो मुझे सर्च चाहिए। अरे सर्च होगी तो रिसर्च होगी ना, इसलिए कहा प्रवचनम संधानम। अरे पढ़ाना अपने में अनुसंधान है। बच्चे का स्तर क्या है, वातावरण कैसे, पहचानो तो सही। संधान होगा तो अनुसंधान होगा, सर्च होगी तो रिसर्च होगी। मैं इसलिए कहा करता हूं, प्रोफेसर का कार्य रिसर्च नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट करेंगे नए संदर्भ। प्रोफेसर का कार्य तो सर्च करना है, सत्य खोजो, जिसके लिए कहा हिरण्मयेन गर्भे सत्य से आपी हितमुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्म दृष्टये। मुझे लगता है प्राचीन भारत के जितने भी सिद्धांत हैं, इन सब, ये सभी सिद्धांत एनपीएसटी का आधार है। एनपीएसटी के अंत में जो अध्यापकों की श्रेणी दी गई है, जो अध्यापकों के लक्षण दिए गए हैं, हमारा उद्देश्य परीक्षण से जुड़ा है, लेकिन केवल परीक्षण नहीं है, केवल परीक्षण नहीं है। बीएड का अभिन्न भाग बन जाने का अर्थ है किस प्रकार से इन फीचर्स को, इन लक्षणों को हम बीएड के पाठ्यक्रम से जोड़ सकें। यह हमारा उसका मुख्य लक्ष्य था। और फिर एनपीएसटी और एनएमएम अलग नहीं हैं, ये 3 चीजें हैं। आईटेप को अगर देखना है, मैं ये कहूंगा बीएड का पाठ्यक्रम आईटेप जमा एनपीएसटी जमा एनएमएम, और आज बात जोड़ी आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का आधार बनेगा आईटेप, लेकिन आईटेप जमा एनपीएसटी जमा एनएमएम, तब जाकर ये बीएड की पूरी संकल्पना बनती है। समय नहीं, इसलिए मैं इसको सार रूप में समाप्त करके कहूंगा, इस पूरी बीएड की चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम का सार तत्व मैं
कविता के रूप में बहुत पहले कभी लिखी थी, बहुत छोटी सी कविता है, दे रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है अपने अध्यापक से, मत दो मुझे शब्द वे जिनके अर्थ तुमने दिए हैं, मत दो मुझे शब्द वे जिनके अर्थ तुमने दिए हैं, मत दो मुझे परिभाषाएं जिन्हें तुमने रचा है, मत दो मुझे परिभाषाएं जिन्हें तुमने रचा है, देने दो मुझे नए शब्दों के नए अर्थ, देने दो मुझे नए शब्दों के नए अर्थ, रचने दो मुझे नई परिभाषाएं, बुनने दो मुझे नए सूरज का नया सवेरा, नए सूरज का नया सवेरा। यह NPST है, यह ITEP है और यह NMM है। और अंत में एक वाक्य मैं कहा करता था अपने संस्थान में प्रातःकालीन सभा में, वंदना जी बैठी हैं, अब तो बाई चांस हमारे अध्यक्ष महोदय भी आ गए हैं, जब ये B.Ed कर रहे होंगे तो याद करिएगा उस वाक्य को। मैं कहा करता था इसका सार क्या है NPST ITEP का। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस पॉलिसी हैज़ कम एंड दीज 3 डॉक्यूमेंट्स हैव कम। और वो सार है, बच्चा ही वह वास्तविक पुस्तक है जिसे शब्दशः पढ़ना होगा, बच्चा ही वह वास्तविक पुस्तक है जिसे शब्दशः पढ़ना होगा। चाइल्ड इज अ रियल बुक विच इज़ टू बी रेड वर्ड बाई वर्ड, चाइल्ड इज अ रियल बुक विच इज़ टू बी रेड बाई वर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर अपने आप में एक पूरी रामायण है, जिनको सुनने के लिए, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए अगर हम सारा दिन भी शायद बैठ जाएं वो भी कम होगा। तो थैंक यू सर आपके सारगर्भित और मार्गदर्शक शब्दों के लिए। सूचित करते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि जो हमारे NPST और NMM के डॉक्यूमेंट्स हैं इनका 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और इंक्लूसिव के लिए भी ब्रेल में इनका ट्रांसलेशन हो चुका है। हमारे NCT के जो प्रोग्राम जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से NEP 2020 के तहत NMM एंड NPST मिले हैं, इसमें अहम भूमिका है नोडल ऑफिसर्स की। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो हमारे वेस्टर्न रीजन के नोडल ऑफिसर्स या अदर फंक्शनरीज जो भी इस सभागार में हैं, मैं यहाँ से उद्बोधन करूँगी, तो काइंडली आप स्टेज पे आए। आपकी भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं स्टेज से आपका आह्वान आपको यहाँ पर आपको कॉल दूंगी, तो काइंडली आप स्टेज पे आएंगे ताकि हमारा मान बढ़ा सकें आप। थैंक यू। पहले मैं कॉल करती हूँ गुजरात से श्री प्रकाश भाई के त्रिवेदी जी, डायरेक्टर GCRT, डॉक्टर A.K. मोद पटेल, डिप्टी डायरेक्टर GCRT, और डॉक्टर अखिल D. ठाकुर GCRT। आप में से, इनमें से कोई भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर स्टेज पर आपको कॉल कर रही है। गोवा से श्री गोविंदराज देसाई, नोडल ऑफिसर्स NMM। अगर हमें पता चले स्टेज पे, डाइस पे पता चल जाए कि उपस्थिति है या नहीं है। गोवा से श्री गोविंदराज देसाई, नोडल ऑफिसर NMM। मेरी आदरणीय चेयरपर्सन सर से रिक्वेस्ट कि गोवा से श्री गोविंदराज देसाई, नोडल ऑफिसर NMM का मान बढ़ाएं। अभी नहीं, कितनी देर में आ जाए? हो जाएगा, आप आ जाइए। रुकिए मैडम, रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए। ये किताबें NCT सहर्ष उस भाषा में इसको रूपांतरित की है जो वहाँ की भाषा है, कोंकण और गोवा की। तो NNM और NPST उसमें ट्रांसलेट किया गया है और ये उनको एक उपहार के तरफ से भेंट किया जा रहा है। हमारे पब्लिक डोमेन में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी भारतीय भाषाएं हैं 22 उसमें ये अवेलेबल हैं। अब हम गुजरात से अनुरोध करेंगे कि उनके SCRT के रिप्रेजेंटेटिव या डाइट के रिप्रेजेंटेटिव या स्कूल्स के कोई भी आएँ और ये अपनी गुजरात में भाषा में जो रूपांतरण की गई प्रतिलिपि है इसको ग्रहण करें। गुजरात, ये गुजराती में ट्रांसलेट किया गया है दोनों किताबों को, ताकि इसकी उपयोगिता बढ़ सके। नेक्स्ट मैं छत्तीसगढ़ से बुलाना चाहता हूं और मेरा आग्रह है कि डाइट SCRT या स्कूल से जो भी प्रतिनिधि आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, प्लीज कम। देन महाराष्ट्र के प्रतिनिधि,
थैंक यू। अभी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि से अनुरोध है। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, आप लोग यहीं रुकें, जो भी स्टेट प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ एक फोटोग्राफी होगी। प्लीज यहीं रुकिए। मध्य प्रदेश प्लीज, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर नागर हवेली, एंड दमन दीव। आप लोग आ जाएं, थोड़ा स्टेज पर ही रहें, क्योंकि अभी एनपीएसटी एनएनएम का चैप्टर 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अपने लैंग्वेज में इसको समझिए और इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। दादर नागर हवेली एंड अंडमान दीव, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग यहीं रहें, थोड़ा सा ग्रुप फोटो हो जाए, क्योंकि ये हमारे कल से ये इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे और एनसीटी के की रिसोर्स पर्सन होंगे एनपीएसटी और एनएनएम को संचालित करने के लिए।